ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ, ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ। ਮਾਂ ਆਖਿਆਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਹੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਡ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਬੇਅਦਬ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਲੱਖ ਆਉਣ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਪਰਤਾਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੇ ਲੱਖ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ, ਦੇਣ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ। ਹਮਦੋ ਸਨਾ اور درود و سلام تو بعد محترم سامعین حضرات، اج مئی دی 14 تاریخ ہے۔ اس دن نو عالمی سطح دے اوپر بین الاقوامی سطح تے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ جاواں صدقے ماں دے نام اتوں، جاواں صدقے ماں دے نام اتوں، ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی، نال پیار دے جدوں ماں کہیے، لگدا منہ وچ جیویں کھنڈ پیندی، جیڑا ماں نو کرے نا کنڈ یارو، او دی کدے بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی، بے ادب جے ماں دا ہووے کوئی، اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی، اور لکھ آن بہاراں وچ گلشن، مالی باغ دے مکھ پرتاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، نعم البدل جگ تے کوئی ماں دا نہیں، نعم البدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں، کرے لکھ زمانہ پیار پاویں، دین ماں دا نہیں کوئی دے سکدا، پتر جان وی دیوے وار پاویں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد محترم سامعین حضرات، اج مئی دی 14 تاریخ ہے، اس دن نو عالمی سطح دے اوپر بین الاقوامی سطح تے مدر ڈے دے حوالے دے نال، ماواں دے عالمی دن دے حوالے دے نال انہوں منایا جاندہ ہے۔ اے فلسفہ، اے منطق اور اے کنسیپٹ سانو مغربی ممالک تو ملیا ہے، جبکہ اسلام دا اے کنسیپٹ نہیں۔ مغربی ممالک نے ایک دن ماواں دے حوالے دے نال رکھیا ہے، لیکن اسلام سانو ایک کنسیپٹ دیندا ہے کہ اسیں اپنی ماں دا، اسیں اپنے والد دا، اپنے باپ دا ادب ہر روز ہر لمحے کرنا ہے، نہ کہ اسی مغربی ممالک دی یلغار دے اندر آ کے، مغربی ممالک دے جال دے اندر آ کے اسی سارا سال اپنے والدین دی تذلیل کرنی ہے، سارا سال اپنے والدین دی تحقیر کرنی ہے، اور ایک دن اولڈ ہاؤس دے اندر جا کے اپنی ماں نو، اپنے پیو نو گلدستہ پیش کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اپنی ماں دے نال بڑا پیار کرنا وا، میں اپنے باپ دے نال بڑا پیار کرنا وا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے سانو ماں باپ دا جڑا ادب دسیا ہے، اسی ہر لمحے ہر وقت
اور ہر گھڑی اپنی ماں دا اپنے باپ دا احترام کرنا ہے، نہ کہ سال بعد ایک دن منا کے دنیا نو دس دینا کہ اسی ماں باپ دا بڑا پیار کرنے ہیں، ماں باپ دا بڑا ادب کرنے ہیں، ماں باپ دا بڑا احترام کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جڑیاں اج مغربی تنظیماں جیڑا ماٹو لے کے جیڑا نعرہ لے کے اج نکلیاں نے، اللہ رب العالمین نے جدوں دی دنیا بنی ہے اللہ پاک نے ماں باپ دے ادب نو احترام نو ادوں دا ہی اجاگر کیتا ہے۔ قرآن کریم اندر اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف جڑی آیہ مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا، اسی انسان نو اس بات دی وصیت کر دیتی ہے کہ اپنے والدین نال احسان کرنا ہے، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ایدی ماں نے انو اٹھایا، کرہم ووضعتہ کرہا، ایدی ماں نے تکلیف دے نال مشقت دے نال انو اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور ماں نے انو دودھ بھی پلایا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جس وقت 40 سالاں دا کڑیل جوان بن گیا، 40 سالاں دا نوجوان بن گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ پھر انسان کہے اللہ سونیا جڑیاں منو نعمتاں دتیاں نے میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا، جڑیاں میرے والدین نو تو نعمتاں دتیاں نے میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا۔ یعنی بات کرنے دا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے اولاد دی بھی تربیت فرمائی اور والدین دی بھی تربیت فرمائی۔ اولاد نو والدین دے حقوق دسے اور والدین نو اولاد دے حقوق دسے۔ اے نہیں کہ اسلام نے اولاد نو صرف پابند کر دیتا ہے کہ والدین دا احترام کرنا ہے، والدین نو بھی پابند کیتا ہے کہ اولاد دے حقوق کی نے انہاں نو سامنے رکھنا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے اندر جڑی بات سانو مل دی ہے قرآن و حدیث دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو سب تو پہلی بات جڑی ساڑھے سامنے ہوں دی ہے والدین دی جڑی تربیت قرآن کریم نے کیتی ہے او دا حقیقی نہج کیا ہے۔ سب تو پہلا جڑا والدین دا حق ہے نا، ماں دا حق ہے، باپ دا حق ہے، سب تو پہلے والدین نے رب دے کولوں دعا کرنی ہے اپنی اولاد واسطے تے نیک اولاد دا سوال کرنا ہے، سب تو پہلا حق۔ انبیاء علیہ السلام دی زندگیاں انہاں دی سیرت ساڑھے سامنے موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ سونیا منو نیک بیٹا عطا کر دے، اللہ سونیا منو نیک پتر عطا کر دے۔ والدین دے حقوق دے اندر سب تو پہلا حق ہے کہ والدین نے جدو دعا کرنی ہے اپنے رب دے کولوں سب تو پہلا حق ہے اللہ سونیا منو نیک پتر عطا کر۔ جدو رب کولوں دعا کرنی ہے نا ادو بیٹے دی دعا کرنی ہے، کسے پیغمبر دی دعا نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر موجود ہے۔ بیٹیاں کوئی ماڑی چیز نہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن قرآن و حدیث دے اندر جدو اللہ کو سوال کرنا ہے تو بیٹے دا سوال کرنا ہے۔
किसी पैगंबर ने भी असीं अक जाने अल्लाह 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल औलाद ना दे तो असीं अक जाने या अल्लाह अगर सानू बेटा नहीं देना तो चल बेटी दे दे। यानी ये हकारत दे लफज ने, बेटी नू हकीर समझण दे लफज ने। मेरे वीर मेरे भाई ये बात नहीं। नबियां ने 86 साल तक 120 साल तक नबियां ने औलाद मंगी है रब दे कोलों, लेकिन किसी नबी ने यह नहीं कहा या अल्लाह चल बेटा नहीं तो मैनू बेटी दे दे। रब दे कोलों दुआ की, रब दे कोलों सवाल किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह पाक ने फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब दे कोलों दुआ की थी। काला रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दे सामने जिस वेले फल देखे, हजरत ज़करिया नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद तो महरूम रखे आए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी हुनालिका दाम ज़करिया रब्बहू। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसे जगह ते अपने रब दे सामने हाथ चुक लै और दुआ करते ने रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अल्लाह सोने मैनू नेक औलाद अपनी तरफों अता कर। रब्बे हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अल्लाह सोने मैनू नेक औलाद अता कर, पाकीज़ा औलाद अता कर अपनी तरफों, क्योंकि इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह सोने दुआवां दा सुनने वाला तू है। इंसान जदों पुकारदा है अल्लाह इंसान दी पुकार नू सुनने वाला तू है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल वसूक नाल, मुकम्मल यकीन नाल, मुकम्मल एतमाद दे नाल अपने रब दे कोलों दुआ की थी। जिस वेले दुआ की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों अल्लाह सोने मैनू नेक बेटा, नेक सीरत, पाकीज़ा बेटा अता फरमा। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी दुआ नू रायगा नहीं किया, उन्हां दी दुआ नू बेकार नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नू औलाद दे नाल नवाज़िया। यानी सब तो पहली बात यह है, यानी इंसान जो दुआ करे अपने रब दे कोलों ते नेक औलाद दी दुआ करे। नबियां ने सानू ये सीरत दी है, अंबिया दा ये मिशन है। औलाद की तरबियत 14 मई मदर डे दे मौके दे उपर मैं बिलखसूस वालदैन दे नाल मुखातब होना चाहना कि वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत के हवाले दे नाल नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलुहु। जिस वेले इंसान मर जाता है, इंसान दुनिया तो चला जाता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इनक़ता अमलुहु, इंसान दे सारे अमल मुनक़ते हो जाते ने, इंसान दे अमाल दा सिलसिला खत्म हो जाता है। इल्ला मिन सलासा, मगर 3 चीज़ां ऐसियां ने जड़ियां इंसान नूं मरन तो बाद भी अजर ते सवाब मिलता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। सब तो पहली चीज़ इंसान सदका जारिया कर जाता है, कोई मदरसा बना जाता है, कोई मस्जिद बना जाता है, कोई यतीम खाना तैयार कर जाता है, कोई यतीमां दी कफालत का इंतजाम कर जाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये अमल इंसान नूं मरण तो बाद भी सवाब मिलता रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, ऐसा इलम जिहड़ा इंसान दूसरे नूं सिखाउंदा है और वो इलम सिखाण दी वजह दे नाल लोग अगे सीखते ने, सिखाते ने, ये सिलसिला जारी रहिंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान दे मरण तो बाद भी इहदा सवाब मिलता रहिंदा है।
तीसरी चीज़ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम फरमाउंदे ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ वलादिन सालिहिन यदऊ लहू, इंसान औलाद की तरबियत कर गया, नेक औलाद छड़ गया, वो औलाद इंसान दे वास्ते दुआ करेगी, वो इंसान नेक अमाल करेगी औलाद, और इंसान को उहदा सवाब मिलता रहेगा। इस वास्ते बच्चे की तरबियत के अंदर, औलाद की तरबियत के अंदर वालिदैन दोनों ही जिम्मेदार ने, लेकिन सब तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मावां दे उपर आयद होंदी है, क्योंकि वालिदैन जिहड़े ने उन्हां दे अंदर मां ने घर की जिम्मेदारी संभालनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीवी इंसान दे घर दी, इंसान दी इज्जत दी, इंसान दी औलाद दी मुहाफिज है। इंसान आप रोजी कमान वास्ते सुबह नूं गया, शाम नूं आया, औलाद दियां हरकतां, औलाद दी उहदा किरदार वो मां दे सामने रहिंदा है। मां अगर उहदी सलाह कर दी है तो औलाद के अंदर बेहतरी के चांस मौजूद ने, लेकिन मां अगर पर्दा पा दे, बाप नूं ना दसे, तो फिर की है, फिर औलाद इंसान दे वास्ते सदका जारिया नहीं बनती। मेरे वीर मेरे भाई, जिथों तक वालदैन दे अदब और एहतराम का ताल्लुक है, इस्लाम ने रोज़ मदर डे, रोज़ फादर डे मनाने का हुक्म दिता है। असी साल बाद मदर डे और फादर डे मनाने के कायल नहीं, बल्कि इस्लाम कहता रोज़ मां का एहतराम कर, रोज़ अपने बाप का एहतराम कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने फरमांदे ने, इन्नर रजुला ला तुरफअ दरजा फिल जन्ना, एक बंदा दुनिया तो चला गया, फौत होके जन्नत के अंदर चला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अचानक उस बंदे का एक दर्जा जन्नत के अंदर वधा दिता। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, फयकूलु अन्ना हाज़ा, ये बंदा पूछदा है, अल्लाह सोहणिया मैनू जन्नत के अंदर एक दर्जा मिल गया, एक दर्जे के अंदर इजाफा हो गया, अल्लाह सोहणिया किंज मिलिया? फयकूलु बिस्तिग़फ़ारि वलादिका, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने बिस्तिग़फ़ार वलादिका लक, अज तेरे बेटे ने तेरे वास्ते दुआए इस्तिग़फ़ार की है, अल्लाह पाक ने उसकी वजह के नाल जन्नत के अंदर तेरे एक दर्जे के अंदर इजाफा कर दिता है। यानी इंसान अगर औलाद की तरबियत सही करके जाता है, औलाद नूं नेक छड्ड के जाता है, फिर इंसान दी औलाद इंसान दे वास्ते सदका जारिया है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिन, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा हुंदा है। ये हदीस मैं दलील के अंदर दे रहा कि वालिदैन तरबियत करते हैं तो बच्चे नूं दुरुस्त भी कर सकते हैं, तरबियत वालिदैन औलाद की खराब भी कर सकते हैं। देखो ना, असी घर का माहौल जिस तरह का बनाना है, औलाद की तरबियत उस तरह की हो जाएगी। क्या वालिदैन ने औलाद नूं घर के अंदर इस्लामी किताबां, घर के अंदर लाइब्रेरी, घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाया है? क्या वालिदैन ने नफली नमाज पढ़न का घर के अंदर एहतमाम किया है? क्या वालिदैन बाकायदगी के नाल अपनी औलाद के सामने घर के अंदर कुरान पढ़ते हैं? फिर तो औलाद भी देख के कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, औलाद भी वालिदैन नूं देख के नेक अमाल करेगी। लेकिन अगर असी घर के अंदर अपनी औलाद नूं मोबाइल ते लै दिते ने बड़े बड़े, अपनी औलाद के वास्ते इंटरनेट का इंतजाम ते कर दिता है, असी अपनी औलाद के वास्ते डिश एंटीना का इंतजाम कर दिता है, अपनी औलाद के वास्ते केबल का इंतजाम कर दिता है, फिर मेरे वीर मेरे भाई असी अपनी औलाद नूं बिगाड़न के अंदर 100% उहदे जिम्मेदार हाँ।
प्यारे पैगंबर दी हदीस सुनना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने हर पैदा होने वाला बच्चा फितर ते इस्लाम ते पैदा हुंदा है। फा अबवाहु हुण वालिदैन दे जिम्मे में, ये वालिदैन दी जिम्मेदारी है, युहव्विदाने ही अपनी औलाद दी तरबियत करके अपने बच्चों नूं यहूदी बना देन, औ युनस्सिराने ही या अपनी औलाद दी तरबियत करके अपने बच्चों नूं ईसाई बना लैन, औ युमज्जिसाने ही या अपने बच्चों की तरबियत करके अपनी औलाद नूं मजूसी बना लैन। यानी जेड़ा बच्चा पैदा हुंदा है फितर ते इस्लाम ते पैदा हुंदा है। हुण वालदैन ने तरबियत करनी है, यहूदियों के घर पैदा होया वालदैन ने बच्चे नूं यहूदी बना लिया, ईसाइयों के घर पैदा होया वालदैन ने तरबियत की औलाद ईसाई बन गई, मुसलमानों के घर पैदा होएगा वालदैन तरबियत करनगे तो बच्चा मुसलमान बन जाएगा। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई, वालिदैन औलाद की तरबियत के मुकम्मल जिम्मेदार ने। मदर डे मावां दा आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वालिदैन दे विचों भी मां दा सब तो बड़ा हक है औलाद की तरबियत के अंदर। मुहद्दिसीन दी सीरत के अंदर बहुत सारे मुहद्दिसीन मेरी नज़र के अंदर ऐसे ने जिन्हां ने कुनीयत अपनी मां के नां ते रखी है। उन्हां दी तरबियत के अंदर उन्हां दी मां का बहुत ज्यादा हक है। अल्लाह अकबर। सब तो पहली बात जी मैं बयान की थी कि वालिदैन ने दुआ करनी है औलाद की, नेक औलाद की दुआ करनी है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानी युता बिस्सिबियानी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जिस वेले किसी बच्चे नूं लिआंदा जांदा फयुबर्रिकु अलैहिम, नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे वास्ते बरकत दी दुआ कर दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व युहन्निकुहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे नूं गुड़ती देंदे। आप अलैहिस्सलाम बच्चे दे वास्ते बरकत की दुआ कर दे और उस बच्चे नूं गुड़ती भी देंदे। वालिदैन दा हक ये भी है कि अपनी औलाद दे वास्ते गुड़ती दिवाण वास्ते किसी अच्छे बंदे दा, नेक बंदे दा इंतखाब करे। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा दी साहबजादी है। जिस वेले हिजरत मदीना इन्हां ने कीती, मदीना तो थोड़ी दूर फासले के उपर मस्जिद कुबा बस्ती है, उत्थे मस्जिद कुबा भी है। कुबा मकाम ते बस्ती के अंदर जाके इन्हां नूं अल्लाह पाक ने बेटे दे नाल नवाज़िया। ये अपने बेटे नूं उठा के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाज़र होइयां ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेले बच्चे नूं देखिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे दे सिर दे उपर हाथ फेरिया। आका अलैहिस्सलाम ने बच्चे दे कान दे अंदर अजान कही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर नूं अपने मुंह दे अंदर चबा के इस बच्चे दे मुंह दे अंदर पाया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस बच्चे दे पेट अंदर सब तो पहली खुराक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लाबे दहन जांदा है। मेरे बरादर इत्थे ही बस नहीं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने एदा नाम अब्दुल्ला रखिया। आप अलैहिस्सलाम ने नाम भी अब्दुल्ला रखिया। औलाद दा सब तो बेहतरीन और अहम हक जिहड़ा है, बेहतरीन नाम दा इंतखाब करना है। औलाद दे वास्ते अच्छे नाम दा इंतखाब करना है, अच्छे नाम दा इंतखाब करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम 7 दिन, जिस वेले बच्चा 7 दिन का हो जाए ना, 7 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चे का नाम रख लिया जाए। ये कोई फर्ज और जिम्मेदारी नहीं, बल्कि औलाद का नाम उसकी पैदाइश तो पहले भी मुंतखब किया जा सकता है। मियाँ बीवी कह सकते हैं अगर अल्लाह ने सानू बेटा दिता तो असीं अपने बेटे का नाम यह रखना है, अगर अल्लाह ने बेटी दी तो वह नाम असीं यह रखना है। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई, जिस वेले सानू अल्लाह बेटा दे या अल्लाह सानू बेटी अता करे, असी उन्हां दे वास्ते अच्छे नाम का इंतखाब करना है। बाद वालिद कहता मैं ना रखना है, माँ कहती है नहीं मैं ना रखना है। वालिद अगर बात सही करता है तो वालदा नूं उहनूं तस्लीम करना चाहिए। बाद औकात बड़े अच्छियां चीज़ों के सामने मावां रुकावट बनदियां ने। माँ ने वक्ती फायदा देखिया,
मां ने कहा मैं इस जगह ते रिश्ता करना है, बाप कहता नहीं मैं बाहर फिरदा तुरदा, मैं देखा बच्चा बिल्कुल नकम्मा, बच्चे की मजलिस ठीक नहीं, मां मजबूर करके रिश्ता करवा देंदी है बाप दे कोलों, यदा खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पैंदा है। अल्लाह पाक ने मर्द नूं हाकम बनाया घर वास्ते। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने अन्नन नबिया अमरा बेतस्मियतिल मौलूद यौमन साबिआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7वें दिन बच्चे दे नाम रखण दा सानू हुक्म दिता। वलादत तो पहले भी नाम रखा जा सकता है, इसकी दलील कुरान के अंदर मौजूद है। सूरत आले इमरान के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मैं शुरू के अंदर किया कि उन्होंने अल्लाह के कोलों पाकीज़ा औलाद मंगी। ये वालदैन का हक है, अल्लाह के कोलों जो सवाल करना है तो नेक औलाद का सवाल करना है। अल्लाह पाक ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्तियां नूं भेजिया। फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर ज़करिया, असी फरिश्ते दे जरिए तुहाडी तरफ पैगाम भेज रहे हैं। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह पाक तुहानू बशारत दे रहे ने ऐसे पुत्र दी जिहदा नाम अल्लाह पाक ने यहिया रख दिता है। बेटा अजे होया नहीं तो अल्लाह ने नाम पहले ही रख दिता यहिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाल 3 खूबियां बयान फरमाइयां, ऐ मेरे पैगंबर ज़करिया, तुहाडा जिहड़ा बेटा होएगा सय्यदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस सालिहीन, ये सरदार होएगा, पाकबाज होएगा। अल्लाह पाक इनू नेक लोगों की तरफ पैगंबर बना के मबूस कर देंगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर वाजे क्या, वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को भी बुरे नाम के नाल पुकारना नहीं, किसी का भी बुरा नाम नहीं लेना। मेरे वीर मेरे भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत का दिन होएगा, हर बंदे नूं जेड़ा बंदा धोखेबाज है दुनिया ते धोखा देने वाला, भावें अपने भाई नूं धोखा देंदा है, भावें अपने औलाद वालिदैन नूं धोखा देंदी है, भावें अपने भाइयां रिश्तेदारां नूं धोखा देंदा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नल गादिरा युरफउ लहू लिवाउन यौमल क़ियामा, हर फ्राडिये हर धोखे बंदे वास्ते धोखा देने वाले लिए अल्लाह पाक ने एक झंडा ला दिता है। मैदान माशर अंदर एक झंडा गाड़ दिता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान माशर के अंदर कहणगे युकालु हाज़िही गदरतु फलान इब्ने फलान, ये झंडा फलां दे बेटे फलां दा है। अल्लाह नाम लैणगे बाकायदा तौर पे। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, जेड़े बेटे ने इन्हां दे नामां तो पुकारिया जाए, इन्हां दे बाप दे नाम तो पुकारिया जाए। ये औलाद ने कल नूं बाप बनना है, इन्हां दा नाम अच्छा रखना है। ये अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम दा एक गुलाम सी जिन्हां दा नाम हजरत ज़ैद, आपने आज़ाद करके उन्होंने अपना बेटा बना लिया, मुंह बोला बेटा, तो लोगों ने कहना शुरू करता ये ज़ैद बिन मुहम्मद है। अल्लाह पाक ने फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम। इत्थे एक मसला भी वाजे कि अगर कोई बंदा किसी को बेटा लै लेंदा है, ले पालक बेटा लैके पालिया होया बेटा, असी की करने आ, असी फौरी तौर पर ओदी वल्दियत चेंज करके अपनी वल्दियत यूनियन कौंसल के अंदर लिखा देने, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। दूसरी बात आम मशहूर है, लोग कहते हैं भाई क़यामत वाले दिन ना मां के नाम तो बुलाया जाना है,
मां दे नां ते आवाज़ पएगी। ये दोनों ही चीज़ां दूसरी हदीस में तुहाडे सामने बयान की है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन फलान इब्ने फलान कहणगे, फलान दा बेटा ये उस गद्दार दा धोखेबाज दा झंडा है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, इन्ना अहब्बा अस्माएकुम इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर रहमान। अल्लाह के नज़दीक सब तो प्यारे नाम, अल्लाह के नज़दीक सब तो बेहतरीन नाम दो ने, अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान। अल्लाह के हकीकी नाम अब्दुल्ला, रहमान और अल्लाह है। अल्लाह के दोवां नामां दे नाल अबद लगा के नाम रखा जा सकता है। वैसे अल्लाह पाक दे किसी भी नाम दे नाल, जेड़े सिफाती नाम ने, किसी नाम दे नाल भी लफ्ज़े अबद रखा जा सकता है। मेरे वीर मेरे भाई, मां अगर तरबियत कर दी है औलाद दी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले पैदा होए ना, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ते नाबीने ने, मां बड़ी परेशान है। मां कहने लगी, अल्लाह सोहणिया मैं इस अपने पुत्र नूं हाफिज़े हदीस बनाना है, मैं इस अपने बेटे नूं हाफिज़े कुरान बनाना है, मैं इहनूं आलमे दीन बनाना है। अल्लाह सोहणिया ते मेरा बेटा अखां दी बिनाई कोई नहीं। मां भी फिर मां सी, मां दी अपनी तरबियत भी सी और मां ने औलाद की तरबियत की भी जिम्मेदारी उठाई। नमाज़े तहज्जुद दे अंदर सजदे दे अंदर पई मां दुआ कर दी, अल्लाह सोहणिया मेरे इस बेटे नूं अखां दी बिनाई अता कर दे। नींद दे अंदर सीरत इमाम बुखारी दे अंदर लिखिया है, सजदे दे अंदर हल्की जी ऊंग आई, मां दे सामने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हज़रत इब्राहीम कहन लगे, ऐ बीबी सजदे तो सर चुक लै, दुआ तेरी मुकम्मल हो चुकी है, अल्लाह पाक ने तेरे बेटे नूं अखां दी बिनाई अता कर दी है। ये मां दी दुआ है, मां दी तरबियत है, मां नेक है ते मां ने अल्लाह दे कोलों दुआ की, अल्लाह पाक ने अखां दी बिनाई अता कर दी। मेरे वीर मेरे भाई, एक मुहद्दस दा वाकया, ਇਹਦਾ बाप तो मुहद्दस नहीं, सफरे जिहाद ते गया, 30,000 अशरफियां अपनी बीवी नूं फड़ाइयां। कहन लगा अगर अल्लाह बेटा दे बेटी दे ओदी तरबियत करनी है, अगर अज दी मां हुंदी, खावत चला गया, वापसी का कोई पता नहीं, 30,000 अशरफी दे गया, सब तो पहले की खरीदना सी? सब तो पहले टेलीविजन, फिर केबल का इंतजाम करना, फिर है बड़े बड़े छितरा जिहड़े मोबाइल, छोटे छोटे सानू चलाने नहीं आते, छोटे छोटे बच्चे बड़ी स्पीड ना चलाते हैं। ये वालदैन का हक है, जिहड़ी औलाद की तरबियत के अंदर रुकावट चीज़ बनती है, उहदे तो बचिया जाए। मां ने तरबियत की, 27 साल का अरसा गुजर गया। 27 साल तो बाद यह आदमी वापस आया, दरवाजे ते दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, अंदरों एक नौजवान निकलता है, कहन लगा तुसी कौन हो? कहन लगा मैं घर का मालक हाँ। आने वाला कहन लगा मैं घर का मालक हाँ। ये नौजवान कहन लगा मैं घर का मालक हाँ। आपस के अंदर तकरार हुंदा है, मां घरों बाहर निकलती है। मां कहन लगी बेटा ये तेरा बाप है जिहड़ा सफरे जिहाद ते गया सी, 27 साल तो बाद वापस आया है। बेटे ने साइड ते होया रस्ता दिता, बाप आके लेटदा है। बेटा गुफ्तगू कोई नहीं करते, रात का टाइम है, लेट जाते ने, सुबह का टाइम हुंदा है। बेटा उठिया मस्जिद के अंदर चला गया, बाप ही नेक सी, उठिया मस्जिद के अंदर चला गया। ये नौजवान मुसल्ला रसूल ते खलो के नमाज पढ़ांदा है। जिस वेले नमाज खत्म हुंदी है, नमाज तो बाद एक साइड ते बैठ जाता है, लोग इहदे गिरद आके बैठ जाते ने। नबी पाक दे फरमूदात प्यारे पैगंबर दियां हदीसां सुना रहा है, लोग इहदे गिरद बैठे ने। इन्हें रुमाल जिस तरह हाजी रुमाल लेंदे ने, सफेद रंग का रुमाल लटकाया है। जिस वेले घर पहुंचया, इन्हें देखा ये ते ओही नौजवान है जिहड़ा मस्जिद के अंदर बह के नबी अलैहिस्सलाम दियां हदीसां सुना रहा सी। ये ते ओही नौजवान है जिहड़ा नौजवान मुसल्ला रसूल ते खलो के इमामत करवा रहा सी। जिस वेले घर पहुंचया, बीवी कहन लगी मेरे सर दे ताज
तुसीं मैनूं 30,000 अशरफियां दे के गए सी, अगर कहो तो मैं उन्हों दा हिसाब दें। बीवी कहन लगी अल्लाह, बंदा कहन लगा अल्लाह वालिए हिसाब की जरूरत नहीं, मैं मस्जिद के अंदर वो हिसाब देख के आ गया, जिहड़ा हिसाब मैं लेना ना वो मैं हिसाब लै चुकिया वा। यानी मां ने तरबियत की थी, वो वक़्त का मुहद्दस बनया नौजवान। मेरे वीर मेरे भाई, प्यारे पैगंबर अलैहि इस्लाम की खिदमत के अंदर एक नौजवान बच्चा छोटा जिहा आका अलैहि इस्लाम दे नाल उस बंदे ने, उस बच्चे ने दिन रात गुजारे। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर के कोल एक मरतबा मैं बैठा खाने के वास्ते, तो जिस तरह बच्चों की आदत होंगी ना बह के, या सियाने बंदे भी बड़ा करते हैं, परात के अंदर खाना पिया होए ना तो भावें अगले बंदे के अगों खाना चुकना पे, मनपसंद जी चीज़ होंगी है ना अगले बंदे तो खाना चुकना, जबकि नबी पाक ने सख्ती के नाल मना किया अपने अगों चीज़ खानी है। आका अलैहि इस्लाम ने फरमाया मेरे बेटा कुल बिस्मिल्लाह, जिस वेले खाना शुरू करना है अल्लाह का नाम लैके शुरू करना है। वालदैन के सामने, वालदा के सामने तो बच्चे ने खाना खाना, वाल ने सुबह को जाना शाम को वापस आना, वालदा के सामने बच्चे ने खाना खाना है, सुबह को भी शाम को भी दोपहर को भी। ये तरबियत का हिस्सा है। बेटा कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लैके खाना शुरू कर। कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने वो खा। कुल बेयमीनिक, सज्जे हाथ दे नाल खाना खा। खाने दे अंदर किन्नियां चीज़ां नबी पाक ने बयान कीतियां बच्चे नूं, अपने सामने वो खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, ते तीसरी बात की है सज्जे हाथ नाल खाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन नूं औलाद की तरबियत का मुकम्मल जिम्मेदार बनाया है, और वालिदैन दे विचों भी मां मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि मां घर की रखवाली करती है, खावत की इज्जत की, खावत के घर की, खावत की औलाद की जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दुआ है कि इलाहुल आलमीन सानू अपनी औलाद के वास्ते मुरब्बी और उस्ताद बनने की तौफीक अता फरमाए कि असी अपनी औलाद की सही मानिया के अंदर तरबियत करिए, ताकि ये औलाद कल साडे वास्ते सदका जारिया बने। और नौजवानों के वास्ते भी कि नौजवान सिर्फ 14 मई नूं ना समझ लैन कि मदर डे 14 मई नूं असीं अपनी मां का एहतराम करना, बाकी सारा साल अपनी मां नूं गालियां कढ़नियां ने, नौज़ बिल्ला, अपनी मां नूं पुछना नहीं, हाल नहीं पुछना, अपनी मां के कपड़ियां का ख्याल नहीं करना, अपनी मां की जुत्ती का ख्याल नहीं करना। जिस वेले फेसबुक ते 14 मई नूं आ गया फिर अपनी मां नूं जाके गिफ्ट पेश करना है, गुलदस्ता पेश करना है। ये मगरबी तहजीब है कि ओल्ड हाउसां दे अंदर जाके 14 तारीख नूं अपनी मां नूं अपने बाप नूं जाके मिलना इस्लाम दी तहजीब नहीं। इस्लाम ने रोज अपनी मां का एहतराम दस्या है, इस्लाम ने रोज अपने बाप का एहतराम दस्या है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा प्यार नाल, मुहब्बत दे नाल, मुवद्दत दे नाल मुस्कुरा के अपनी मां के चेहरे वाल देख लेंदा, अल्लाह पाक एक हज का सवाब अता करदे ने। सहाबा कराम बैठे ने, एक सहाबी को रिहा ना गया, अल्लाह के पैगंबर अगर कोई बंदा 100 मरतबा एक दिन के अंदर देखता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह तो इस तो भी अजीम है, अल्लाह तो इस तो भी पाकीज़ा है। यानी अगर 100 तो ज्यादा भी बंदा देखता है तो अल्लाह 100 हज का भी सवाब अता कर दे। मेरे वीर मेरे भाई एवं कमला होया दौड़ा फिरदा दुआवां वास्ते। मैं एक मुहद्दिस दा कौल पढ़िया, उन्हें आख्या कि एक तरफ 70 वली दुआ करन, एक तरफ कली मां दुआ करे, अल्लाह 17 वलियां तो पहले मां की दुआ नूं कबूल कर लेंदे ने। एवं दौड़िया फिरना है, कदी किते कदी किते, कमलिया तरह दुआ कराना फिरना है, वली ते तेरे घर दे अंदर बैठे ने।
لیکن ماں دی باپ دی قدر نہیں. جدو دنیا تو ٹر جاندے نے پھر فیس بک تے سٹیٹس لگتے نے, پھر بڑیاں بڑیاں پوسٹاں بندہ فیس بک تے شیئر کردا ہے کہ میں ماں دا بڑا خادم ہاں, میں باپ دا بڑا خادم ہاں. میرے ویر میرے بھائی, زندگی دے اندر ماں دا ادب کر, زندگی دے اندر باپ دا احترام کر, تاکہ باپ نو بھی پتہ لگے, میرے باپ نو پتہ لگے کہ میرے بیٹے نے میرا ادب کیتا ہے, میرا احترام کیتا ہے. دعاواں کہنیاں نہیں پیندیاں, بلکہ دعاواں خود ملدیاں نے جے والدین تیرے تو سکھی ہون. اللہ تو دعا ہے کہ الہ العالمین نوجوانوں میرے سمیت جنہ دے والدین زندہ نے, اللہ پاک ادب احترام کرنے دی توفیق دے, اور جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر انہاں دے درجات بلند فرمائے. اور جڑے والدین اپنی اولاد دی تربیت تو غیر ذمہ دار نے, ذمہ داری قبول نہیں کر دے, اللہ پاک ان والدین بھی توفیق دے کہ اپنی اولاد دی اسلامی نہج دے اوپر تربیت فرمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.